Namo Buddhaya. Jai Bhim. So tomorrow is the quarter day. Quarter? Quarter day. Means? I mean half. No. It's the third quarter of the moon. Okay. Yeah. तो कैसे बोलेंगे थर्ड क्वार्टर मुझे नहीं पता आज Tomorrow. Yeah. Art, yeah. Carry on. So we had the full moon 8 days ago. तो 8 दिन पहले पूर्णिमा थी. What is it? Ashtami. Ashtami. So in Buddhist tradition, those are the days when you celebrate, well, particularly the chapter meetings and so on. तो ये वो दिन होता है जब आप अपनी चैप्टर मीटिंग करते हैं और इसी तरह की दूसरी बातें करते हैं. So tomorrow night we'll have a special puja. Tomorrow night. Yeah. तो कल हमारे पास एक विशेष पूजा रहेगी. We will hopefully go to the caves. और शायद मतलब उम्मीद है कि हम गुफाओं में जाएंगे, लेनी में जाएंगे. So we'll try to be there by 5 o'clock. तो वहाँ हम कोशिश करेंगे कि 5 बजे तक पहुँचेंगे. So no talk tomorrow. तो कल कोई प्रवचन नहीं होगा. Just get there by 5 o'clock. तो 5 बजे आपको वहाँ पे पहुँचना है. If you go very quickly, leave at 4:45. तो अगर बहुत तेज चलते हैं आप तो 4:45 बजे निकल सकते हैं. If you go slowly, leave at 2 o'clock. तो अगर बहुत ही धीमे चलते तो 2 बजे निकलिए यहाँ से. Fine. You know how long it takes you. तो आपको पता है कि आपको पहुँचने में कितना समय लगता Let's है. try and all be there ready to start. Yeah? तो कोशिश करेंगे कि हम वहाँ पहले ही पहुँच चुके होंगे और जो कुछ हमें वहाँ करना है उसके लिए तैयार रहेंगे. We won't be able to stay very late because they'll close the site. तो बहुत देर तक हम वहाँ पर नहीं रुक पाएंगे क्योंकि वो लेनी को बंद कर देते हैं. And we'll perform our quarter day puja. तो अष्टमी की जो हमारी पूजा है वो वहाँ पर करेंगे हम. And that will be a preparation for the next phase of dedicating the stupa. और वो जो रहेगी हमारी तैयारी रहेगी जो हमारा स्तूप को समर्पित करने का अगला चरण है उसकी. What we're next going to do is place the tree of life in the center of the stupa. तो अगले चरण में हम ऐसा करने वाले हैं कि वो जो जीवन वृक्ष है वो स्तूप के केंद्र में रखने वाले हैं. And we'll do that on the 22nd. और वो हम 22 तारीख को करेंगे. Because that's the winter solstice. It's midwinter. क्योंकि वो जो शिशिर ऋतु होता है मतलब सर्दी का जो मौसम होता है उसका वो It's the. I won't be able to do. I'm sorry, I'm giving you difficult things. I don't know. Conrad Kumar, see if you know. Oh. Don't know it is. Is it not on? Yeah, it wasn't. So if he wasn't an order member before, now he is. So yes, we'll be celebrating the point when the days begin to get longer. तो हम ऐसे दिन को मना रहे हैं जहाँ पर कि जो दिन है वो लंबे होता है. Up until now, the days have been getting shorter. तो अभी तक जो है वो दिन जो है वो छोटे छोटे होते आया है. On the 22nd, they start to get longer. और 22 तारीख के बाद वो फिर जो दिन है वो लंबा होने वाला है. You don't notice it so much here in India. तो आप भारत में उस बात को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान नहीं देते. But in Britain at the moment, the sun will be dark by 4. The sun will have set by about 4 o'clock.
लेकिन जो इंग्लैंड में है वो सूरज जो है वो बाय 4 By 4 o'clock, yeah. तो 4 बजे के बाद फिर वो अंधेरा होना शुरू हो जाता है वहाँ पे. And in midsummer, it doesn't get dark till past 10. और जो धूप का दिन होता है, उस धूप के दिन के जो मध्य के समय में होता है, उस समय वो 10 बजे के बाद ही वो अंधेरा फिर होता है. But here there is a variation, but it's much smaller. वहाँ पर एक जो है अंतर होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है. But in effect, it's the day when life begins to return. लेकिन वैसा वो दिन है जहाँ पर को जीवन जो है वो एक तरीके से फिर से वापस आता है. You feel that very strongly in Britain, in northern countries, yeah? ये इस बात को आप जो है वो इंग्लैंड में उस बात को महसूस कर सकते हैं. और Northern countries. और जो उत्तरी जो देश है वहाँ पर आप उस बात को महसूस कर सकते हैं. And but even here, there is a change. लेकिन यहाँ पर भी एक तरीके से परिवर्तन है, बदलाव है. So it's an appropriate day to put the tree of life in. और ये एक बहुत ही अच्छा दिन है जहाँ पर कि जो ट्री ऑफ लाइफ को वहाँ पर लगाना, जीवन के वृक्ष को. But today we're going to take another subject. लेकिन आज हम एक दूसरे विषय को लेने वाले हैं. Yesterday we looked at where the five foundation yogas fit. कल हमने जो देखा है कि ये जो 5 मूलभूत बातें हैं कहाँ पर वो फिट होता है. What they lead to. वो किस तरफ लेके जाता है. Why we're doing these practices. और ये जो अभ्यास है हम क्यों कर रहे हैं. But I said that today we're going to look at something that's even before the Mula Yogas. लेकिन जैसे मैंने कहा है कि आप हम मूल योगा से पहले की जो विषय है उसके ऊपर देखने वाले हैं. Why is it that we don't succeed in our practice? ऐसा क्यों है कि हम हमारे साधना में सफल नहीं होते. Why is it that we make some effort, but we don't really go very much forward? ये ऐसा क्यों होता है कि हम कुछ मात्रा में हमारे प्रयास करते हैं लेकिन हम आगे की तरफ क्यों नहीं बढ़ पाते. Or even if we do go forward, we don't go forward far enough. अगर हम आगे भी जाते हैं फिर भी हम क्यों ज़्यादा आगे नहीं जा पाते. Well, the traditional answer, it is because we are still looking towards samsara. और पारंपरिक उत्तर ऐसा है कि हम अभी भी संसार की तरफ देख रहे हैं. We still think we can find a solution to our suffering within samsara. हम अभी भी ऐसे सोचते हैं कि हम एक जो उत्तर है हमारे उसको संसार में ही ढूंढने की कोशिश कर रहे We हैं. think if we can just get everything in samsara arranged properly, we'll be okay. और हम अभी भी ऐसे सोच रहे हैं कि संसार में हर एक चीज़ों को अगर ठीक तरीके से इंतजाम कर ले तो हम सफलता पा सकते हैं, ऐसा हम सोचते हैं. And everything will be fine. और सभी चीज़ें जो है वो ठीक हो जाएगा. The right husband, the right wife. तो सही एक पति हो या सही पत्नी हो. Everybody knows that's not possible. और सभी लोग जानते हैं कि ये संभव नहीं है. The right children. और बच्चे भी अच्छे हों. The right friends. और जो मित्र हैं वो भी अच्छे हों. The right bank account. और हमारे जो बैंक अकाउंट है वो भी अच्छा भरा हो. The right job. और अच्छा हमारे जॉब हो. So we constantly think that we can make samsara work properly for us. और हम बार बार उसी बात को ही निर्माण करते हैं कि जो संसार है वो हमारे लिए अच्छे तरीके से कार्य करे. So traditionally it's said that we need to turn our minds away from samsara. तो जो पारंपरिक रूप से कहा गया है कि हमारा जो मन है वो हमारे मन को संसार के विपरीत दिशा में लेके जाना है. So it's as if the refuge tree is in front of us. ऐसे कि जो शरण वृक्ष है हमारे सामने में है. We're going hum to the best of refuge I go. और हम बोलते हैं कि ओंगा हूँ सर्वश्रेष्ठ को शरण जाता हूँ. But we're looking over there. तो हम अलग
दूसरे दिशा में देखते हैं और प्रणिपात करते रहते हैं। So even though we're doing the right things, we're not really doing them for the right reasons. तो हम जानते हैं कि हम सही बात कर रहे हैं, लेकिन उसका सही कारण से हम नहीं कर रहे होते। Of course, none of us are not looking at all at nirvana. तो हम में से कोई भी ऐसे नहीं है कि हम निर्वाण की तरफ देख रहे हैं। No, we all of us are to some extent looking at nirvana, yeah. हम सभी लोग जो है कुछ ही मात्रा में हम निर्वाण की तरफ देख रहे हैं, But we need to turn fully away from samsara. लेकिन हमें जरूरत है कि हम पूरी तरीके से संसार से छुटकारा पाएं। In other words, we go like this. Yeah. नहीं तो हम उस तरीके से करेंगे। So we're still holding on to samsara even though we're going forward to nirvana. हाँ, हम अभी भी संसार की तरफ चिपके हुए हैं, जब हम जानते हैं कि हम निर्वाण की तरफ हम जाने वाले हैं। So it's a bit like trying to walk forward while holding something behind you. तो You can't make progress. तो इस तरीके से है कि हम आगे की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, लेकिन पीछे कुछ ही चीज को पकड़े हुए हैं। So it's said that we need to do more work to turn away from samsara. तो ये कहा जाता है कि हमें निर्माण की तरफ बढ़ने के लिए और भी कार्य करने की जरूरत है। And that the four preliminary Mula Yogas are concerned with this. और जो 4 प्रारंभिक है मूल्य योगा के साथ जो संबंध रखते हैं वो बहुत जरूरी है। They're reflections that we need to make in order to turn our minds towards the Buddha. और उसी बात के ऊपर चिंतन करना जो है वो हमको निर्वाण की तरफ लेके जाता है। They're formalized as a set of reflections. तो उसको एक चिंतन की एक पद्धति के रूप में दिखाया गया है। But really we need to be doing them all the time. और हम उसको हमेशा करते रहते हैं। We need to all the time be realizing samsara is not enough. और हमें ज़रूरत है कि हमेशा इस बात को सोचना, इस बात के ऊपर चिंतन करके संसार जो है ये पर्याप्त नहीं है। We need to realize all the time that the conditioned cannot give us fulfillment. और हमें हमेशा इस बात के ऊपर चिंतन करना है कि जो संसार है वो हमारे सभी चीज़ों को हमेशा पूरा नहीं कर सकता। And if we can do that, then we'll find that we begin to make much more rapid and clear progress. और हम अगर ये कर पाते हैं तो हम एक सही दिशा में और अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं। So we're going to look today at the first of the four. तो आज हम जो चारों में से जो पहला है उसको देखने वाले हैं। And this is the recognition of the preciousness of your human birth. और ये जो है ये हमारे मनुष्य जीवन की जो मूल्य क्या बोलेंगे प्रीशियसनेस, जो मूल्यवान है, जो हमारे मनुष्य जीवन की जो मूल्यवान है उस बात को देखने वाले। We need to recognize that this life that we have now is the one that will help us to practice the Dhamma. और ये हमारे जो जीवन है ये हमको मदद कर सकता है धम्म की आचरण करने के लिए। And traditionally there are ways of reflecting on this. और पारंपरिक रूप से अलग अलग तरीके से इसके ऊपर चिंतन करने का तरीका है। And I will go through these a little carefully. तो इसके ऊपर मैं जाने वाला हूँ बहुत ही सजगता से। But while I'm doing so, just look. तो मैं ये क्यों करने वाला हूँ, आप जस्ट केवल देखिए। This is to some extent a meditation. और ये कुछ ही मात्रा में है, एक तरीके से ध्यान साधना है। So I'm asking you to listen carefully to what I'm saying. तो मैं आप से आग्रह करूंगा कि मैं जो बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान पूर्वक सुने। And to try to apply it to yourself. और आप कोशिश कीजिए कि उसको उसको अप्लाई करने के लिए। If you want to take notes, of course you can. If you want to take notes, you can. हाँ, तो आप अगर उसको लिखना चाहेंगे तो आप लिख सकते हैं। But when you're taking notes, it's more difficult to reflect. लेकिन आप जब लिखते हैं तो वो उस समय चिंतन करना ये कठिन होता है। So you might want to just listen later.
हो सकता है कि आप इस बात को बाद में भी सुन सकते हैं। either to take your notes later or to reflect later. हो सकता है कि आप आपका नोट जो है आपका बाद में लिखे या फिर आप बाद में सुने। So, yes, we are born as human beings. तो हम एक मनुष्य मात्र करके जन्म लेते हैं। What extraordinary good conditions we have right now. तो कितने ऐसे विशेष परिस्थिति हमारे पास है अभी इसी वक्त। So many of you have rejoiced in the opportunity that this Sangaram gives you. तो आप इस बात का पुण्यानुमोदन कर सकते हैं कि जो संघाराम आपको जो दे रहा है। And that's very good because you're seeing the preciousness of this particular situation. तो ये बहुत ही अच्छा है कि इस जो परिस्थिति है उसका एक बहुत ही महत्व है। But it's not just this particular situation that's very good. केवल ऐसा नहीं है कि ये जो परिस्थिति है ये केवल अच्छा है। Just being a human being is a really extraordinary opportunity. और केवल उतना ही नहीं है, केवल एक मनुष्य करके भी रहना ये बहुत ही महत्वपूर्ण ऐसी बात है, एक हमारे लिए सुविधा है। Traditionally, we reflect on this by thinking about what this human birth is free from. तो पारंपरिक रूप से हम इसके ऊपर चिंतन करके देखते हैं कि फ्री फ्रॉम। Yeah. तो ये जो मनुष्य जीवन है ये किससे मुक्त है? As a human being, you're not in hell. तो एक मनुष्य करके हम नरक की अवस्था में नहीं है। You know, if you think about the wheel of life, you can remember all the different realms on the wheel of life. आप अगर जो भवचक्र है उसको देखते हैं तो वहाँ पर अलग अलग जो लोक हैं। The realm. Oh yeah, look, yeah. And one of those, of course, is hell. और उसमें से एक जो लोक है वो नरक लोक है। Where beings, as a result of their intense anger in past lives, are reborn in a situation of great suffering. तो ऐसे जो जीव हैं जो उनके पहले के जीवन में उनके जो द्वेष के राग के स्वभाव के कारण वो एक बहुत ही दुख भरी ऐसे स्थिति में जन्म लेते हैं। And that's supposed to be, of course, the objectification, the result of your own state of mind. और ये एक तरीके से वस्तुनिष्ठ है कि हमारे जो मन की It's the result of your. जो मन की अवस्था का एक परिणाम है। It's like a dream that just goes on and on and on. और वो इस सपने की तरह है जो बार बार होते रहता है। And all the time just suffering. और हमेशा वहाँ पर दुख होता है। All the beings that you see torment you. तो जो अलग जीव होते हैं वो आपको दर्द देते हैं, पीड़ा देते हैं। Well, we're not in hell. लेकिन हम नरक की अवस्था में नहीं हैं। We're free from that possibility of birth. और हम उसी जो संभावना है वहाँ जन्म लेने की उससे मुक्त हैं। Of course, there are beings even on this planet, the human beings on this planet, who are really in hell. लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर इस धरती पे जो मनुष्य हैं वो वहाँ पर नरक की अवस्था में हैं। There are beings who are effectively hell beings. तो वहाँ पर जो जीव है वो एक तरीके से नरक का यातना में जी रहे हैं। I remember seeing a picture of the terrorist who shot people in VT station several years ago. मुझे याद है कि जो VT स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर एक आतंकवादी लोगों को मारता है वो। I can't remember his name, but he was eventually captured. कसाब। Oh yeah, Kassab, yeah. But you see pictures of him, and his face is like a devil. तो मैं उसका जो फोटो देखा और वो एक तरीके से उसका फोटो जो था एक बहुत ही शैतान की तरह था। And he looks as if he's in hell himself. और वो ऐसा दिखता है कि वो एक तरीके से नरक की जीवन में है। And of course he's causing hell to others. और वो एक तरीके से दूसरों को भी नरक की यातना दे रहे हैं। So yes, you could have been in hell. तो ही
We could have been in hell. Yeah. हो सकता है हम भी नर्क में हो, Maybe we even have been in previous existences. Yeah. और हो सकता है कि हमारे जो पूरा अतीत के अस्तित्व में भी हम रहे होंगे. It's not that hard to get so angry that you just experience anger everywhere. तो It's not hard to get so angry that you just experience anger everywhere. तो जो एक द्वेष की स्थिति होता है चारों तरफ, उसको हम एक तरीके से उसमें कठिनाई नहीं है कि हम उसको भी अनुभव ना करें. Then there's the Pretaloka. उसके बाद प्रेतलोक है, And that is the manifestation of intense greed. और वो जो अवस्था होता है वो एक तरीके से बहुत ही सशक्त ऐसी लोभ की भावना का प्रतिरूप होता है, उसको दर्शाता है. Where you're just full of longing. तो एक तरीके से हम चीज़ों के साथ बहुत ही चिपके हुए रहते हैं. And everything presents itself to you in those terms. You can repeat things if you want for video. If you want to repeat the things for video, you can. Okay. Thank you very much. I'll just try. Good. So, yes, the Pretaloka is one of intense craving. तो ये प्रेत लोक जो होता है वो तीव्र आसक्ति का लोक होता है. Unsatisfiable craving. और ये तृष्णा ऐसी होती है कि चाहे आप कुछ भी कर लो वो संतुष्ट नहीं होती. Well, people exist in that sort of state even in this life, yeah? तो ये जो जीवन रहता है, इस जीवन में भी लोग उस अवस्था में रहते हैं. People are just completely consumed by longing. तो लोग जो है पूरी तरह से मतलब आसक्ति में होते हैं, आसक्ति उन्हें खा जाती है. Well, you're not in that state. हम उस स्थिति में नहीं हैं. Then there's the animal realm. और उसके बाद प्राणी लोक होता है. Animals just survive. प्राणी केवल जीवित रहते हैं, मतलब अपना अस्तित्व बनाए रखते हैं. All they can do is struggle to get the food they need, to reproduce, to avoid being eaten by somebody else. तो वो सिर्फ इतना ही करते हैं कि बस अपना प्रजनन देखते रहते हैं, खाने पीने की व्यवस्था देखते रहते हैं और देखते रहते हैं कि किस तरह से कोई उनका जीवन खत्म ना करे, अपने आप को बचाते रहते हैं, सुरक्षित रखते हैं. And again, we can see people even in this life who live just like animals. और इस जीवन में भी हम ऐसे लोगों को देख सकते हैं कि जो बिल्कुल प्राणियों की तरह अपना जीवन जीते हैं. Well, you're not in that state. हम उस स्थिति में भी नहीं हैं. Then, of course, there's the Devaloka, और देवलोक भी होता है उसके बाद, where everything is just wonderful for you. और जहाँ पे आपके लिए हर चीज बहुत अद्भुत होती है, अच्छी होती है. Every desire is immediately satisfied. जो भी आपकी इच्छा होती है वो तुरंत पूरी हो जाती है. You get everything you want. जो आपको चाहिए होता है तुरंत उपलब्ध हो जाता है. But of course, actually, you're not really satisfied. लेकिन फिर भी आप जो है वो संतुष्ट नहीं होते. So the Devas live very long, they get everything that they want, but there's always insecurity. तो देव बहुत लंबी आयु जीते हैं, उन्हें जो चाहिए होता है हमेशा मिलता है, लेकिन हमेशा उसके साथ एक असुरक्षितता होती है. And again, we see people like that in this life. और उस तरह के भी लोगों को हम इस जीवन में देखते हैं. You see the life of the filmy people. तो जो फिल्म सितारे होते हैं उनका आप जीवन देखते हैं. They have so much, they have everything. तो उनके पास बहुत सारी चीज होती है, हर चीज होती है. But it's so obvious they're not really happy. लेकिन ये बात इतनी स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि वो सुखी नहीं है. Maybe some are, I don't know. But so often they're just one divorce after another, so many quarrels, so much difficulty in their तो हो lives. सकता है कि वो है, मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन हमेशा बहुत सारी चीजें होती है. एक डिवोर्स हो जाता है, उसके बाद दूसरा हो जाता है, और एक के बाद दूसरे झगड़े चलते रहते, बहुत कुछ चलते रहता है उनके जीवन में. I remember meeting one person who'd been a social worker in America. तो मुझे याद है मैं एक व्यक्ति से मिला था जो अमेरिका में एक स्वयं मतलब समाज सेवक था, सोशल And वर्कर he था. worked amongst very poor people in New York. और न्यूयॉर्क के जो बहुत गरीब लोग थे उन लोगों के साथ वो काम करता था. Now he'd started to be a social worker for people in Hollywood. अब वो मतलब समाज सेवक ही है, लेकिन अभी उसने हॉलीवुड के लोगों के लिए काम करना शुरू कर दिया. Even though they had everything, they're not happy.
तो भले ही उनके पास हर चीज है, वो सुखी नहीं है। You always want more. आपको हमेशा ही अधिक कुछ चाहिए होता है। You're always worried about losing it. आप हमेशा ही इस डर में रहते हैं कि जो आपके पास है वो आप खो देंगे। Well, you're not in a heaven realm. और निश्चित ही आप स्वर्ग लोक में नहीं हैं। In a heaven world, you don't get any real reflection. तो जो स्वर्ग लोक होता है उसमें जो है आपकी चीजें आप तक मतलब दोबारा नहीं देख सकते आप में। It's very difficult to really see because you've got everything. क्योंकि चीजों को देखना इतना मुश्किल होता है कि आपके पास हर चीज उपलब्ध होती है। So these four realms exist in human life. तो ये जो चार लोक है मनुष्य के जीवन में अस्तित्व में होते हैं। And they exist after death, it said. और वो मृत्यु के बाद भी अस्तित्व में होते हैं। So we're free from these. तो हम इन लोकों से मुक्त हैं, हम इन लोकों में नहीं हैं। We experience the human state. तो हम जो है मनुष्य की अवस्था का अनुभव लेते हैं। Yes, we get pain, हम दुख पाते हैं, but we also get pleasure. लेकिन हमें सुख भी मिलता है। We've got some freedom to act and to choose. तो हमारे पास कुछ स्वतंत्रता है कि हम क्या करें, नहीं करें और किस चीज का हम चुनाव करें। So we should rejoice in our freedom from the other places of rebirth. तो फिर दूसरे जो जगह है जहाँ पे हमारा पुनर्जन्म हो सकता है वो नहीं होने वाला है, इस बात में हमने आनंद लेना चाहिए। Then it said that we should rejoice in the fact that we are free from the barbarian lands. फिर ये भी बोला जाता है कि हमने इस बात का भी आनंद लेना चाहिए कि हम एकदम हिंस्र जंगली लोगों की भूमि में नहीं हैं। You could be born on this human realm in such a state that there's no culture. तो इस मनुष्य जीवन में भी आप ऐसी स्थिति में या ऐसी जगह पर जन्म ले सकते हैं जहाँ पे कोई भी संस्कृति सभ्यता नहीं है। You live a life of constant fear. और आप हमेशा ही एक डर भरी जिंदगी बिताते हैं। It's a life of superstition. जहाँ पे अंधश्रद्धा से भरा हुआ जीवन होता है। Without any real understanding of your position in life. और आपको बिल्कुल ही समझ नहीं होती है कि आपके जीवन में वास्तविक स्थिति क्या है। No education. कोई शिक्षा नहीं होती। No sight of some higher dimension to life. और किसी उच्च आयाम से जीवन के आप परिचित नहीं होते, वो आपकी दृष्टि में भी नहीं होता। Well, you're not in that state. आप उस स्थिति में नहीं हैं। You're born in a place at a time when there is some culture. और आप ऐसे समय में और ऐसे जगह पे आपका जन्म हुआ है जहाँ पर संस्कृति है, सभ्यता है। You could have been born with your faculties damaged severely. तो हो सकता है कि आप ऐसी स्थिति में भी जन्म लेते जहाँ पे आपकी जो क्षमताएं, योग्यताएं हैं वो परिपूर्ण नहीं होती, अधूरी होती। I read in the papers the other day about a boy who'd been born without a brain. तो उस दिन मैंने अखबार में मतलब खबर पढ़ी कि एक लड़का है जो दिमाग के बिना पैदा हुआ। He had just a very thin crust of brain. तो जो दिमाग होता है हमारी, उसकी एक हल्की सी बस परत है उसके अंदर। So no capacity to manage himself at all. तो उसमें बिल्कुल ये काबिलियत नहीं है कि वो अपनी देखभाल खुद कर सकता है। For some time when I was a young man, I worked with people with that sort of problem. तो जब मैं युवा था तो कुछ समय के लिए मैंने ऐसे ही जो मुश्किलात है जिन लोगों को उनके साथ काम किया है। They're just like little children, even though they got adults' bodies, yeah. तो भले ही उनके पास एक प्रौढ़ व्यक्ति का शरीर है, लेकिन वो एकदम छोटे बच्चों जैसे होते हैं। You could have been like that. तो आप वैसे भी हो सकते थे। No possibility of practicing the Dhamma there. और फिर ऐसी स्थिति में धम्म के आचरण करने की कोई संभावना आपके पास उपलब्ध नहीं होती। You could have been born at a time when no Buddha और had आप been there. ऐसे समय में भी जन्म ले सकते थे जहाँ पर बिल्कुल भी कोई बुद्ध नहीं होते। In a way, you could say in India up until 60 years ago there was no Buddha. तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत में भी 60 साल पहले तक कोई बुद्ध उपस्थित नहीं Just थे। even 100 years ago there was really no Buddha in England. और 100 साल पहले तक तो इंग्लैंड में भी कोई बुद्ध नहीं थे। And I read quite recently the life of a very good poet.
और हाल ही में एक बहुत अच्छा जो कवि है उसके जीवन के विषय में मैंने पढ़ा Extremely sensitive man, और वो बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति था an English poet. और एक अंग्रेज कवि है वो Very, very sensitive indeed. और बहुत ही वो संवेदनशील है And some of the best poetry in Britain of the 20th century. और ब्रिटेन की 20वीं शताब्दी की जो कविता है उसमें से बहुत अच्छी जो कविताएं हैं उसने लिखी But he was very, very depressive. लेकिन वो बहुत ही मतलब निराश था He had no idea of some higher meaning to life. और जीवन का एक उच्चतम अर्थ होता है इस विषय में उसे कोई कल्पना नहीं थी So his life was a life with no Buddha. तो उसका जीवन ऐसा था जैसे बुद्ध के बिना जीवन There was nothing to aim for, no goal. ऐसा कोई लक्ष्य नहीं था उसके सामने कि जहाँ पर वो जा सकता था Nothing beyond. और उसके परे कुछ नहीं था दुनिया में इसके लिए You could have been born at a time when there's no Dhamma. और आप ऐसे समय में जन्म ले सकते थे जहाँ पर कोई धम्म नहीं होता There could have been the relics of the Buddha, but no Dhamma. तो बुद्ध के अस्थियां होती अवशेष होते लेकिन धम्म नहीं होता That really was the condition in India until 60 years ago. और 60 साल पहले तक भारत में यही ऐसी स्थिति थी The Mahabodhi temple was still there. महाबोधि विहार अभी जहाँ है वहीं था You could see many places, well, you could see the caves at Bhaja. तो आप बहुत सारी ऐसी जगह को देख सकते थे जैसे आप भाजा की लेनी को देखते हैं But no Dhamma. लेकिन धम्म नहीं So nobody knew what it was about. तो फिर कोई भी नहीं जानता था कि ये सब लेनियां या वो चीजें क्या है क्यों है किस लिए Until Baba Sahib came, nobody really even thought about these things. तो जब तक बाबा साहब आए तब तक किसी ने इस विषय में सोचा भी नहीं था Well, there were a few others before him, but he was the main one to reawaken India to the Dhamma. तो उनके पहले कुछ लोग थे लेकिन धम्म के प्रति अगर भारत ने किसी को जागरूक किया होगा तो वो बाबा साहब थे So these are the 8 freedoms. तो ये 8 स्वतंत्रताएं हैं We're not in hell. हम नरक में नहीं हैं We're not Pretaloka. हम प्रेतलोक में नहीं We're हैं not animals. हम प्राणी नहीं हैं We're not devas. हम देव नहीं हैं We're not barbarians. We're not uncultured people. हम जंगली हिंस्र असभ्य लोग नहीं हैं We don't lack any of our faculties. और हमारी क्षमताएं योग्य रूप से कार्य कर रही है उसके बिना नहीं है हम We don't live at a time when there's no Buddha. हम ऐसे समय में नहीं है जहाँ पर बुद्ध उपस्थित नहीं We है don't live at a time when there's no Dhamma. और हम ऐसे वक्त में भी नहीं जी रहे हैं जहाँ पर धम्म भी नहीं है So with this approach, what you're doing is you're looking at how bad things could have been. तो जब आप इस परिप्रेक्ष्य को देखते हैं तो आप इस बात को देखते हैं कि जीवन कितना बुरा हो सकता था You're recognizing your own opportunities by seeing what you have not been forced into. तो आप अपने अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं ये बात को देखते हुए कि कौन सी बातें जबरदस्ती आपके जीवन में नहीं है या उस प्रकार का जीवन जीने के लिए आप बाध्य नहीं हैं And I remember seeing a letter that Baba Sahib wrote to his son. तो मुझे याद है कि मैंने एक खत देखा था जो बाबा साहब ने अपने बेटे को लिखा था And he was talking about the way in which his father had taught him contentment. और उसमें बताया गया है कि कैसे उनके पिता ने मतलब बाबा साहब के पिता ने उन्हें संतुष्ट रहना सिखाया है He said that whenever they started to complain about their condition, he would stop them. तो जब भी वो अपनी परिस्थिति के विषय में शिकायत करना शुरू करते थे तो वो उनके पिता जो है उनको रोकते थे They would sleep, they'd have to just sleep on the floor. तो उन्हें बस यूं ही जमीन पर सोना पड़ता था They didn't have palang, they didn't have a mattress, yeah? तो ऐसा कोई पलंग या गद्दा उनके पास नहीं था They just had to sleep on the bare floor. और बस ऐसे नंगी जमीन पर उनको सोना पड़ता था Sometimes not enough blankets in the winter. कभी कभी ठंडी में मतलब पर्याप्त ब्लैंकेट्स नहीं होते थे उनके पास रजाई They'd start to complain. और फिर वो शिकायत करते थे And his father would say, yes, it may be difficult, तो उनके पिता कहते थे हाँ समझता हूँ कि ये मुश्किल है but you have a roof over your head. लेकिन तुम्हारे सर पे छत है Many people don't have that. और बहुत सारे लोगों के पास वो नहीं होता है So he got them to
recognize, accept, be content with their own condition by realizing it was much worse for others. तो उन्होंने उन्हें एक तरह से सिखाया कि किस प्रकार से अपनी परिस्थिति में संतुष्ट रहना है, मतलब उस चीज को देखते हुए कि दूसरों के पास वो चीज उपलब्ध नहीं है. So when you're practicing this, when you're reflecting on this, you keep on remembering how bad it could be. तो जब आप इसका आचरण करते हैं, इसके ऊपर चिंतन करते रहते हैं, तो आप देखते रहते हैं कि चीजें कितनी बुरी हो सकती थी. However bad things are, much worse for many others. तो चीजें चाहे कितनी भी बुरी क्यों ना हो, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके लिए वो और भी ज्यादा बुरी होती I है. really notice this in the West. People complain about conditions that other people in the world would really like to have. तो मैंने पश्चिम में लोगों को ऐसी परिस्थितियों के विषय में शिकायत करते हुए देखा था जो बहुत सारे लोग जो है उन परिस्थितियों में जाना चाहेंगे. So we deliberately, we consciously reflect these conditions that we have are so much better than that in which other people find themselves. तो हम जानते बूझते जानबूझकर इस बात के विषय में चिंतन करते हैं कि ये जो भी परिस्थितियां हमारे पास है वो इतनी अच्छी है, लोगों के पास वो नहीं है, इससे बुरी हो सकती थी हमारी. You know, for instance, we can say, oh, if only I had the right circumstances, I could practice the Dhamma. तो जैसे उदाहरण के तौर पे हम ऐसे कहते हुए देखते हैं अपने आप को कि हाँ, अगर मतलब परिस्थितियां मेरे लिए योग्य होती तो मैं धम्म का आचरण करता. Poor me, such difficulties. बेचारा मैं, इतनी मुश्किलें हैं. But remember, you've got enough benefits to practice. लेकिन याद रखिए कि आपके पास पर्याप्त सुविधाएं, लाभ उपलब्ध है जिसमें आप आचरण कर सकते हैं. Many people do not. बहुत सारे लोगों के पास नहीं है ये And सब. according to Buddhist tradition, many beings in this universe do not have those conditions. और बौद्ध परंपरा के अनुसार ऐसा भी कहा जाता है कि बहुत सारे जीव है इस ब्रह्मांड में जिनके पास ये परिस्थितियां उपलब्ध नहीं है. So you use these contemplations of the freedoms in order to appreciate the situation that you're in. तो आठ विमुक्तियों का ये चिंतन आप इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि जो भी परिस्थिति में आप हैं उस परिस्थिति की आप सराहना कर सकें. And you quite deliberately do this. Huh? और आप बिल्कुल जानते बूझते जानबूझकर इसको करते हैं. So that's the first set of reflections. तो ये चिंतन का जो है पहला संच है. You don't have to go through this list. तो ये जो पूरी सूची है उसके ही अनुसार जाने की आपको जरूरत नहीं है. But just think right now how beneficial your situation is. लेकिन आप सोच के देखिए कि अभी इसी वक्त इस क्षण में भी कितनी लाभदायक परिस्थितियों में आप हैं. You're here. आप यहाँ पर है You're in a situation where you've got everything supporting you to practice the Dhamma. और आप ऐसी परिस्थिति में हैं जहाँ पर हर चीज आपकी सहायता कर रही है धम्म का आचरण करने के लिए. How many people do you know who would have liked to have been here? और ऐसे कितने लोगों को आप जानते हैं कि जिनकी वास्तव में इच्छा थी यहाँ आने की, But for this reason, for that reason, they can't come. लेकिन इस कारण की वजह से, उस कारण की वजह से वो नहीं आ पाए. So in every situation, even if there's some difficulty there, reflect on how bad it could have been. तो हर परिस्थिति में जब भी कोई मुश्किलात आते हैं तो सोचिए कि वो और कितना बुरा हो सकता था. We have so many difficulties in life, हमारे जीवन में बहुत सारी मुश्किलें होती हैं, but other people have it so much worse. लेकिन दूसरे लोगों की मुश्किलें और भी ज्यादा होती हैं. So we use this kind of reflection to make us appreciate what we've actually got. तो इस तरह के जो चिंतन होते हैं उसकी वजह से हमारे पास जो भी उपलब्ध है उसकी सराहना करने में हमें उससे सहायता प्राप्त होती है. You might find it useful to go through this list. तो ये जो सूची में जो भी लिखा है उसके अनुसार जाना आपके लिए मददगार हो सकता है. Well, you know, I could have been a hell being. मैं मतलब नरकलोक का वासी हो सकता था. So you imagine what that would have been like. और फिर आप कल्पना करते कि वो जीवन किस प्रकार का होता. Constant pain for year after year after year. तो साल के बाद साल गुजरते जाते हैं और निरंतर आपके जीवन में जो है पीड़ा रहती है, दर्द दुख रहता है. Well, I'm not in that condition. तो मैं उस स्थिति में नहीं हूँ. Could have been a preta just completely taken over by longing
तो प्रेत हो सकता था मैं, और आसक्ति मुझे पूरी तरह से खा जाती, तृष्णा। Just wanting, wanting, wanting. तो बस चाहिए चाहिए चाहिए। You're not like that. आप उस तरह नहीं हैं, And so on. और इस तरह बाकी चीजें भी। So when you reflect like that, you begin to appreciate much more the situation that you are in. तो जब आप इस तरह से चिंतन करते हैं तो जिस परिस्थिति में हैं उसकी आप अधिक प्रशंसा करते हैं। And when you appreciate it, you take advantage of it. और जब आप उसके महत्व को समझते हैं, उसके मूल्य को जानते हैं, तो आप उसका लाभ लेते, फायदा लेते। Another result of this reflection is you see that it's actually quite rare to be a human being. तो इस चिंतन को करने का दूसरा परिणाम ये होता है कि आप इस बात को समझते हैं कि एक मनुष्य के रूप में जन्म लेना कितना दुर्लभ है। Consciousness moves from life to life. तो जो चेतना होती है वो अपना सफर जारी रखती है एक जीवन से दूसरे जीवन तक। And each life is the reflection of the mind that we've created in the past. और हर जीवन इस बात को मतलब दिखाता है, उसका प्रतिबिंब होता है कि जो भी जीवन हमने पिछली बार तैयार किया होता है। So every unskillful state we cultivate, that will lead to a result in the future. तो जो भी अकुशल मनोवस्था हम निर्मित करते हैं भविष्य में उसका कुछ ना कुछ परिणाम होता है। And well, it might lead us out of the human state. और हो सकता है कि वो इस मनुष्य की स्थिति से हम बाहर निकालें, मतलब निकल जाए हम। According to Buddhist tradition, once you're out of that state, it's actually quite difficult to get back into it. और एक बार जब इस मनुष्य की अवस्था से या मनुष्य जन्म से हम बाहर निकल जाते तो दोबारा उसे पाना बहुत मुश्किल होता है। So you need to have this large perspective on life. तो जीवन के विषय में इस बहुत ही व्यापक परिप्रेक्ष्य का आपके सामने होना जरूरी होता है। All those 6 realms of existence are realms within which you could find yourself. तो अस्तित्व के जो 6 लोक है ये ऐसे लोक है जिसमें आप अपने आप को पा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं, आपके होने की संभावना होती है। But you're here, you're in this human life. लेकिन आप यहाँ पर है, इस मनुष्य जन्म में हैं। Don't waste it. तो उसे जाया मत कीजिए, बर्बाद मत कीजिए। Use this opportunity while you have it. और जब तक ये अवसर आपके पास उपलब्ध है उसका इस्तेमाल कीजिए। Don't throw it away. उसे यूं ही मत फेंक दीजिए। And this is what we need to constantly reflect upon. और ये ऐसी बातें हैं जिसके ऊपर हमें हमेशा चिंतन करने की आवश्यकता होती है। We then move to the other side of the question. और फिर हम सवाल के दूसरे बाजू में जाते We हैं reflect on the advantages that we've got now. और हमारे पास अभी क्या मौजूद है, कौन से फायदे हैं, उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। These are advantages for our Dhamma practice. और ये सारी सुविधाएं हमारे पास हमारे धम्मों को आचरण करने के लिए उपलब्ध होती हैं। Some of these are just to do with the circumstances that we find ourselves in. तो इनमें से कुछ चीजें बस उन परिस्थितियों को लेकर है जिन परिस्थितियों में हम होते हैं। We've been born in a Buddha land. Yeah? तो हम बुद्ध की भूमि में जन्म लिया है, हमने पैदा हुए हैं। For all of you've been born at a time when Baba Saheb has reignited the Dhamma teachings in India. और आप में से हर एक के लिए आपका जन्म ऐसे समय में हुआ है जब बाबा साहब ने बुद्ध की शिक्षाओं को भारत में पुनर्जीवित किया है। I was recently reading a book by an author looking at the way in which the Buddha was rediscovered in India. तो हाल ही में मैं एक किताब पढ़ रहा था जिसका लेखक इस बात का मतलब बयान कर रहा था कि किस प्रकार भारत में बौद्ध धर्म की पुनः खोज हुई है। In early 19th century, no Indians knew anything about the Buddha. तो 19वीं शताब्दी के शुरुआत में किसी भी भारतीय को बौद्ध धर्म के बारे में कुछ नहीं पता था। He'd been completely lost. बौद्ध धर्म पूरी तरह से खो गया था। And it was British and other European archaeologists and scholars who rediscovered the Buddha. तो जो अंग्रेज जो लोग थे और जो यूरोप के दूसरे लोग थे पुरातत्व विभाग के, उन्होंने जो है बुद्ध की पुनः से फिर से खोज की थी भारत में। You know, for instance, with Ajanta, it was 2 British officers who
rediscovered it. तो जैसे अजंता के बारे में हुआ, वो 2 ब्रिटिश अफसर थे जिन्होंने उसको फिर से खोजा था, And they realized this was a Buddhist cave. Yeah? और उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि ये जो गुफाएं हैं ये बौद्ध गुफाएं हैं। Local people just thought it was a Hindu cave. Yeah? और वहाँ के जो स्थानिक लोग थे उन्हें बस ऐसा लगता था कि बस ये हिंदू लोगों की गुफाएं हैं। But it was with Baba Sahib, and of course there's Periyar and others who also did this work. लेकिन बाबा साहब थे और पेरियार और ऐसे ही कुछ लोग थे जिन्होंने इस कार्य को किया है। Gradually, in a big way with Baba Sahib, India became aware of the Buddha. और धीरे धीरे और बहुत बड़े पैमाने पर बाबा साहब के साथ जो है भारत बौद्ध धर्म से फिर से परिचित हुआ है, बुद्ध से फिर से परिचित हुआ। And gradually people are beginning to awaken to the Buddha. और धीरे धीरे लोग जो है फिर से बुद्ध के प्रति जागरूक होने लगे। But you just imagine, even the word Buddha would not have been mentioned, maybe. लेकिन आप कल्पना कर सकते हैं कि हो सकता है कि कोई यहाँ पर बुद्ध शब्द का जिक्र भी नहीं करता, उनके मुंह से भी नहीं So in effect, this was a land of no Buddha. तो परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं कि ये ऐसी भूमि होती है जहाँ कोई बुद्ध नहीं होता। But it is a Buddha land for us now. लेकिन हमारे लिए अभी ये बुद्ध भूमि है वर्तमान में, For us in the West too. और पश्चिम में हमारे लिए भी। The Buddha is now widely known in the West. और पश्चिम में अभी बहुत बड़े पैमाने पर लोग बुद्ध से परिचित हैं। And that means that we can connect with the Buddha. और इसका अर्थ ये होता है कि हम बुद्ध से जुड़ सकते हैं, हमारे पास अवसर है। So you live in a Buddha land. Rejoice. तो Yeah? आप बुद्ध भूमि में जीते हैं तो उसका आनंद लीजिए। Be really pleased that this is the case. Yeah? और आपको बहुत खुशी होनी चाहिए कि ये आपकी स्थिति है, Because we've already seen it's not the case everywhere. Yeah? क्योंकि हमने पहले ही देखा है कि ये स्थिति या परिस्थिति हर जगह नहीं है। I have connection with the Buddha. मेरा बुद्ध के साथ संबंध है, And because of that, I can practice. और उसकी वजह से मैं आचरण कर सकता हूँ। It's not just that this is a land of the Buddha has taught. और केवल इतना ही नहीं है कि ये केवल बुद्ध भूमि है, बल्कि बुद्ध ने शिक्षाएं भी दी है, पढ़ाया है, सिखाया है। We live at a time when the Buddha's teaching is alive. और हम ऐसे समय में जीवन जी रहे हैं जब बुद्ध की शिक्षाएं जो है वो जीवित है। And we can listen to the Dhamma, we can practice the Dhamma. हम धम्म को सुन सकते हैं और हम धम्म का आचरण कर सकते हैं। Again, this hasn't been the case until quite recently. और फिर एक बार हाल ही के समय तक ये परिस्थिति भी नहीं थी। And it's not just that the Dhamma is there, और इतना ही नहीं है कि धम्म वहाँ पर उपस्थित it's है, being taught. तो वो सिखाया भी जा रहा है। You know, here am I communicating to you teachings of the Buddha. तो यहाँ पर मैं हूँ और आप लोगों को बता रहा हूँ बुद्ध की शिक्षाएं। Not just in a kind of conceptual or a scholarly way. तो केवल विद्वत्तापूर्ण तरीके से या संकल्पनाओं में बांध कर ही मैं नहीं बता रहा हूँ। I'm trying to communicate to you in a way that affects your life and practice. तो मैं आपको इस तरह से बता रहा हूँ जिसका परिणाम आपके आचरण के ऊपर और जीवन के ऊपर होता है। So the Buddha has taught the Dhamma, and the Dhamma is alive. तो बुद्ध ने धम्म को सिखाया है और धम्म जीवित है। How wonderful! कितनी अद्भुत बात है, How कितनी अच्छी बात है। extraordinary that I am in contact with living Dhamma. तो कितनी विलक्षण बात है कि आप मैं धम्म के संपर्क में हैं। A lot of even Buddhists are not in contact with living Dhamma. और बहुत सारे बौद्ध लोग भी हैं जो जीवित धम्म के संपर्क में नहीं हैं। I know scholars in Buddhism who know everything about the Dhamma. तो बौद्ध धर्म के कई विद्वानों को मैं जानता हूँ कि जो बौद्ध धर्म के बारे में हर चीज जानते हैं। Much more than I do. और मुझे जितना पता है उससे कई ज्यादा उन्हें पता But है। it's just the dead dust of the Dhamma. लेकिन वो धम्म की बस मृत ऐसी धूल है। It has no real life. उसमें कोई भी सच्चा जीवन नहीं है। But we're able to sit here, hearing the Dhamma, practicing the Dhamma. लेकिन हम यहाँ पर बैठने के काबिल हैं, हम धम्म को सुन सकते हैं और आचरण करने के भी काबिल हैं। And yes, we're at a time when there are
followers of the Dhamma. और हम ऐसे समय में भी मतलब जी रहे हैं जहाँ पर धम्म के अनुयायी हैं, There's a Sangha. संघ है. We find ourselves with many people who are trying to practice in the way that we want to practice. और हम ऐसे लोगों के साथ थे जो उसी तरह से मतलब आचरण करने का प्रयास कर रहे हैं जिस तरह से हम करने का प्रयास कर रहे Well, हैं. in our case, we would go even further. We've got a Sangha. और हमारे मामले में हम और भी आगे जाते हैं. हमारा अपना संघ है, A really living Sangha. जीवित ऐसा ये संघ है. And isn't this extraordinary? और क्या ये बात विलक्षण नहीं है Just remarkable. और अद्भुत है, मतलब विलक्षण ही है. And we've got conditions which enable us to practice. और हमारे पास ऐसी परिस्थितियां भी मौजूद है जिसकी वजह से हम आचरण करने में सक्षम हैं. We've been able to come on retreat. हम शिविर में आने में सक्षम हैं. We're able to do meditation every day. हम रोज ध्यान कर पा रहे हैं. We करते can हैं. go to study groups. हम अभ्यास वर्ग में जा सकते हैं. We've got all the conditions that enable us to practice. और हमारे पास वो सारी परिस्थितियां मौजूद है जिसकी वजह से हम आचरण करने में सक्षम Of हैं. course, they're not perfect. अनिश्चित ही वो परिस्थितियां जो है वो परिपूर्ण नहीं है. And that's a good thing. वो अच्छी बात है, Because if they were perfect, well, we would just get lazy. क्योंकि अगर वो परिपूर्ण होती तो हम बस आलसी हो जाते. But we've got good enough conditions for practicing the Dhamma. लेकिन हमारे पास पर्याप्त अच्छी परिस्थितियां हैं धम्माचरण करने के लिए. So we reflect on these 5 conditions that we have. तो ये 5 परिस्थितियां जो हमारे पास है उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं. A Buddha has appeared. बुद्ध प्रकट हुए हैं, A Buddha has taught. बुद्ध ने सिखाया है, That teaching is alive. वो शिक्षा जीवित है. There are followers of the Buddha. There's a Sangha of the Buddha. बुद्ध के अनुयायी हैं, बुद्ध का संघ है. And we've got sufficiently good circumstances to be able to practice. और हमारे पास पर्याप्त रूप से अच्छी परिस्थितियां हैं जिसमें हम धम्माचरण कर सकते हैं. So we need to rejoice in these circumstances. तो ये जो परिस्थितियां हैं इन परिस्थितियों का भी हमने आनंद लेना चाहिए, मनाना If we don't recognize them, if we don't rejoice in them, we won't use them. तो अगर हम उन्हें नहीं पहचानते हैं, उन बातों में आनंद नहीं लेते तो हम उसका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे. So constantly reflect on how good the conditions are that you have. तो निरंतर चिंतन करते रहिए कि ये जो परिस्थितियां आपके पास मौजूद है ये कितनी अच्छी हैं. Constantly feel gratitude to the Buddha for having taught. और बुद्ध ने सिखाया, इसलिए निरंतर उनके प्रति आप कृतज्ञता को महसूस कीजिए. Constantly feel gratitude to Baba Saheb because he reawakened India to Buddhism. तो बाबा साहब के लिए निरंतर कृतज्ञता को महसूस कीजिए क्योंकि उन्होंने भारत में बुद्ध और धम्म को फिर से जीवित कर दिया है. Constant gratitude to Bhante for creating a Sangha and a path that we can follow. तो निरंतर कृतज्ञता भंते के लिए क्योंकि उन्होंने एक संघ का निर्माण किया और एक मार्ग हमें दिया है जिसके ऊपर हम चल सकते हैं. Constantly feel gratitude to your brothers and sisters who support you in your practice. और निरंतर रूप से अपने उन भाई बहनों के प्रति कृतज्ञता महसूस कीजिए जो आपको निरंतर सहायता करते हैं. Constantly feel gratitude to your parents. निरंतर रूप से अपने माता पिता के लिए कृतज्ञता महसूस They कीजिए. gave you a life which has enabled you to come to the Dhamma. तो उन्होंने आपको ऐसा जीवन दिया है जिसकी वजह से आप धम्म के पास आने में सक्षम हुए, काबिल बने. And so many other factors in your life have enabled you to practice. और बहुत सारी अन्य घटक है आपके जीवन के जिन्होंने आपको आचरण करने में सक्षम बनाया है. So we reflect deeply on the circumstances that we have. तो जो भी परिस्थितियां हमारे पास उपलब्ध है उसके विषय में हम गंभीर रूप से चिंतन करते हैं. And it's very easy to do in this situation right now. और अभी इस वक्त वर्तमान में हमारे पास जो परिस्थितियां हैं ऐसी परिस्थिति में चिंतन करना बहुत ज्यादा आसान है. We've got almost perfect conditions for practicing. तो आचरण करने के लिए हमारे पास लगभग एकदम परिपूर्ण ऐसी परिस्थितियां हैं. So we really need to recognize that. तो हमें वास्तव में उन्हें देखने की आवश्यकता होती है, स्वीकृत करने की आवश्यकता होती है. And take full advantage. और उनका पूरा लाभ लेने की आवश्यकता होती These conditions won't last. है. ये परिस्थितियां हमेशा उपलब्ध नहीं रहेगी, हमेशा मौजूद नहीं रहेगी. In 6 weeks, it'll be over.
6 हफ्ते में सब चला जाएगा। But still, you'll have good circumstances wherever you are. लेकिन फिर भी जहाँ कहीं आप होंगे वहाँ पे आपकी अच्छी परिस्थिति होंगी They'll be good enough. और पर्याप्त रूप से वो अच्छी होगी। And we shouldn't be thinking, oh, I can't practice now. Later, when I get those circumstances, then I'll practice. और आपने इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि अभी मैं नहीं आचरण कर सकता हूँ, बाद में जब मेरे हालात अच्छे हो जाएंगे तब मैं आचरण करूँगा। The best conditions are the ones you've got. तो सबसे अच्छे हालात या परिस्थितियाँ वही होती है जिसमें आप होते हो, जो आपके पास होती है। And you need to use them now. और अभी इसी समय मतलब अभी वर्तमान में आपको उसका इस्तेमाल करना होता है। So yes, we cultivate this very strong sense of what we've got. तो जो भी हमारे पास है उसके विषय में एक सशक्त भाव को विकसित करते हैं। Then we look at what are known as the personal advantages. और फिर हम आगे जाके देखते हैं कि हमारे व्यक्तिगत कौन से ऐसे लाभ हमारे पास है, सुविधाएं व्यक्तिगत हमारी। We're a human being. तो हम मनुष्य हैं। And a human being has the best opportunities for practice. तो मनुष्य के पास सबसे अच्छे अवसर उपलब्ध होते हैं धम्माचरण के। Because the human being has not too much pain, not too much pleasure. क्योंकि मनुष्य ऐसी स्थिति में नहीं होता है कि बहुत ज्यादा पीड़ा है या बहुत ज्यादा आनंद है। It's a sort of balanced position. तो उसकी जो स्थिति होती है एक तरह से संतुलित होती है। And there are many other states of existence where it's very difficult to choose. और अस्तित्व की बहुत सारी स्थितियां ऐसी होती है कि जहाँ पे चुनाव करना ही बहुत मुश्किल होता है। You know what it's like in a dream? तो जैसे आप जानते होंगे कि सपने में कैसा होता है। In the dream, things just happen. तो सपने में बस चीजें घटित होते रहती है। One thing happens, then another thing happens, then another thing. एक चीज होती है, उसके बाद दूसरी, उसके बाद तीसरी। And you don't really choose anything. और उसमें से कोई भी चीज आपकी चुनी हुई नहीं होती। Everything just happens to you. और सब चीजें आपके साथ बस होते रहती हैं। You can become more awake in a dream. तो सपने में आप अधिक जागरूक रह सकते हैं, हो सकते हैं। But usually we're just passive in the dream. लेकिन सपने में आमतौर पे हम बस निष्क्रिय रहते हैं। Most of the other states of existence are passive states. तो अस्तित्व के जो दूसरी सारी परिस्थितियां हैं वो निष्क्रिय ऐसी ही हैं। But in the human state you have the ability to choose. लेकिन मनुष्य जन्म में या मनुष्य के स्थिति में आपके अंदर काबिलियत होती है चुनाव करने की। So you need to recognize the benefits of being a human being. तो मनुष्य होने का क्या फायदा है इस बात को आपने देखना चाहिए। And feel gratitude to your parents for bearing you as a human being. और आपके माता पिता के प्रति आपने कृतज्ञता मतलब महसूस करनी चाहिए क्योंकि उन्होंने आपको जन्म दिया है, आपको धारण किया है आपके गर्भ को। You need to recognize the advantages of being a human being. और मनुष्य होने के क्या फायदे होते हैं उसको आपने देखना चाहिए। And then use them for the Dhamma. और फिर धम्माचरण के लिए उसका इस्तेमाल करना चाहिए। And you're living in a civilized time. और फिर आप एक सभ्यता में जी रहे, एक संस्कृति जहाँ पर मौजूद है। You've got an education. आपके पास शिक्षा है। You've got access to knowledge. और ज्ञान तक आप पहुँच सकते हैं, वो आपकी पहुँच में है। You've got access to beauty. सौंदर्य आपकी पहुँच में है। You've got access to some kind of higher culture. और उच्च जो संस्कृति होती है उस तक आपकी पहुँच है। You can sing. सिंह आप गा सकते हैं। You can watch good theatre or read good literature. तो अच्छा नाटक या अच्छा साहित्य आप पढ़ सकते हैं। Which lifts your mind. जो आपकी मनोवस्थाओं को ऊंचा उठा देता है। So yes, you have all these advantages. तो ये सारे फायदे आपके पास हैं। You've got all your faculties. तो आपके जो सारी क्षमताएं हैं शारीरिक मानसिक वो आपके पास हैं। Your senses are working. आपके इंद्रिय कार्यरत हैं। And you're able to think. आप सोचने के काबिल हैं। Sometimes well, sometimes not so well. कभी-कभी अच्छा सोच लेते हैं, कभी-कभी इतना अच्छा नहीं सोचते हैं। But yes, we've got our faculties alive. लेकिन हमारी जो भी क्षमताएं हैं वो क्षमताएं कार्यरत हैं। We're not forced into wrong livelihood.
किसी भी प्रकार के जीवन यापन के गलत तरीकों को अपनाने की कोई जोर जबरदस्ती हमारे पास नहीं, हमारे ऊपर नहीं है। Recently I was reading about Somalia तो हाल ही में मैं सोमालिया के बारे में पढ़ रहा था। on the East Africa. ईस्ट अफ्रीका का जो पूर्वी हिस्सा है वहाँ पे है सोमालिया। There's no central government. तो वहाँ पे कोई केंद्र सरकार नहीं है। There's just constant warfare between different factions. तो उस देश के जो अलग अलग हिस्से हैं या गुटे उसमें हमेशा लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। Extreme Islamist groups. तो कट्टरवादी इस्लामपंथी लोग हैं। And they just force people to fight with them, for them. और वो बस लोगों के ऊपर जबरदस्ती करते हैं कि उनके साथ उनके लिए वो लड़े। And you can imagine what they force the women. और आप कल्पना कर सकते हैं कि किस तरह से वो महिलाओं के साथ भी जबरदस्ती करते हैं। So many people are forced into a way of life that is wrong, is bad. और बहुत सारे लोगों के ऊपर इस तरह से दबाव है जीवन जीने का जो बुरा जीवन है। But you're able to live your life by ethical means. लेकिन आप इस बात में सक्षम हैं कि आप नैतिक जीवन जी सकते हैं। So yes, you should rejoice in that. तो आपको उसका भी आनंद लेना चाहिए। And then you have faith in the three jewels. और फिर त्रिरत्नों में आपकी श्रद्धा है। You've managed to get in contact with the Dhamma and to gain faith in the Buddha, Dhamma and Sangha. तो धम्म के साथ संपर्क में आने में आप सक्षम हुए हैं और इसमें श्रद्धा विकसित करने में भी आप सक्षम हुए। And this is truly wonderful. और ये बात सच में अद्भुत है। So, from moment to moment, reflect on the advantages that you have. तो क्षण दर क्षण हर क्षण जो भी फायदे लाभ आपके पास उपलब्ध है उसके ऊपर आप चिंतन कीजिए। It's recommended that when you wake up in the morning, you count, as it were, you think of all the advantages that you have. तो ऐसा सूचित किया जाता है कि जब भी आप सवेरे उठते हैं तो आप गिनिए कि क्या क्या फायदे, कौन सी अच्छी परिस्थिति आपको उपलब्ध है। So often people wake up thinking of all their complaints. तो अक्सर लोग सवेरे जागते हैं और जो भी उनकी शिकायतें उनके विषय में की सोच उनके दिमाग में होती है। But we should count all our benefits. लेकिन जो भी हमारे फायदे लाभ हमारे पास मौजूद है उसके विषय में हमने सोचना So I चाहिए। suggest this is a daily practice. तो इसको एक रोज करने के अभ्यास के तौर पर मतलब मैं इसको सूचित करूँ। Reflect on all the advantages that you have. तो जो भी लाभ अच्छी परिस्थितियाँ आपके पास उपलब्ध है उसके ऊपर चिंतन कीजिए। All the advantages that surround you. सारी परिस्थितियाँ सुविधाएं जो आपके चारों ओर मौजूद हैं। How those support your Dhamma practice. और कैसे ये परिस्थितियाँ आपके धम्म जीवन को सहायता प्रदान करती All हैं। your personal advantages. आपके सारे जो वैयक्तिक लाभ हैं उसके ऊपर सोचना है। You've got a mind that can actually grasp the Dhamma to some extent. तो आपके पास ऐसा मन उपलब्ध है कि वो किसी हद तक धम्म को समझ सकता है। So think of all this. तो इन सब के विषय में सोचिए। And if you want to give yourself a bit more encouragement, think of how it could have been. और अगर आप अपने आप को और ज्यादा प्रेरित करना चाहते हैं तो आप इस विषय में सोचिए कि परिस्थितियाँ कैसी हो सकती थी। If you didn't have this, where could you be? और अगर ये सब आपके पास नहीं होता तो आप कहाँ पर होते? So we reflect on the benefits of our present situation as human beings. तो मनुष्य के तौर पे जो हमारी वर्तमान परिस्थिति है उसके जो फायदे उसके ऊपर हम चिंतन करते हैं। And I would suggest a very important support for this practice. और मैं सूचित करूंगा मतलब इस अभ्यास को सहायता करने वाली और एक चीज है उसके बारे में। Don't complain. शिकायत मत कीजिए। Don't find fault. दोष मत ढूंढिए, गलतियां मत ढूंढिए। I personally have to work hard not to do this. और ऐसा मैं ना करूँ खुद, इसके लिए मुझे बहुत खुद कठिन परिश्रम करने If you've got पड़ेंगे। a sharp mind, अगर आपके पास तेज दिमाग then है you easily find fault. तो बहुत आसानी से आपको दोष गलतियां दिखाई देते So हैं। every day I take a vow not to do that. तो हर रोज मैं कसम खाता हूँ कि मैं नहीं करूँगा, गलतियां नहीं ढूंढूंगा। Every day I fail. और हर रोज
मैं गलती कर देता हूँ, but I keep trying, yeah? लेकिन मैं कोशिश करते रहता हूँ. When you start to complain, you forget the benefits that you really have. और जब आप शिकायत करना शुरू कर देते हैं तब आप भूल जाते हैं कि कौन से फायदे आपके पास मौजूद है, कौन सी अच्छी परिस्थिति. You know, so recently we've had a lot of people complaining about Bhante. तो हाल ही में बहुत सारे लोग भंते के विषय में शिकायत कर Well, the रहे थे. Tibetans say, if you look for faults in your guru, you will find that he is worthless. तो तिब्बती लोग ऐसे कहते हैं कि अगर आप अपने गुरु के दोष ढूंढने लगेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि वो एकदम ही मतलब बेकार चीज है, मतलब उसका कोई यही नहीं है. You'll see that. आप वो देखेंगे, Then you'll see that. फिर उसके बाद आपको वो दिखाई देगा, Then you'll see that. उसके बाद आपको वो दिखाई Then देगा, he's useless. और फिर आपको लगता है कि ये पूरा बेकार है, निरुपयोगी है. But he's a good enough guru. लेकिन वो कुछ हद तक एक अच्छा गुरु होता है. In fact, he's a very good one. देखा जाए तो वो बहुत अच्छे गुरु हैं. So no need to find fault तो कोई जरूरत नहीं है गलतियां ढूंढने की. with your Dhamma colleagues, yeah? आपके जो धम्म साथी हैं उनकी गलतियां ढूंढनी. Your fellow Sangha members. तो आपके जो साथी संघ सदस्य हैं उनकी They विषय have so many faults, उनमें बहुत सारे दोष है, well, like you. आप ही की तरह. But if you keep picking on those faults, well, you will not see their blessings, yeah? लेकिन अगर आप बस उन दोषों को ही चुनते रहेंगे, देखते रहेंगे, तो उनमें क्या अच्छे हैं, कौन से आशीर्वाद प्राप्त है, वो आप नहीं देख पाएंगे. If you think of all the problems in your own situation, तो अगर आपकी परिस्थिति में आप केवल समस्या ही देख रहे हैं, oh, your wife is not like this, your husband is like that, आपकी बीवी ऐसी नहीं है, आपका पति ऐसा है, you'll find so many faults. तो आप बहुत सारे दोष पाएंगे, आपको दिखाई देंगे. But actually, they're decent human beings. Yeah? लेकिन देखा जाए तो वो एक अच्छे मनुष्य हैं. So don't complain तो शिकायत मत कीजिए and don't find fault. और गलतियां मत ढूंढिए, दोष मत The ढूंढिए. person you will hurt is yourself. अगर किसी को नुकसान पहुंचेगी ऐसा करने से तो आपको ही नुकसान पहुंचेगा. And well, they say in Christianity, count your blessings. और क्रिश्चियन या ईसाई धर्म में ऐसा कहा जाता है कि जो भी आशीर्वाद आपको प्राप्त है उनको आप गिनिए. But here, of course, we don't believe some God has given us this. लेकिन यहाँ पर निश्चित हम ऐसा नहीं मानते कि किसी ईश्वर ने हमें कुछ आशीर्वाद प्रदान But we किए. have so many blessings. लेकिन बहुत सारी चीजें आशीर्वाद स्वरूप हमें प्राप्त है. So I want to ask you over the next few days to take this on as a conscious practice. तो मैं आपसे ऐसा कहूंगा कि अगले कुछ दिनों के लिए जागृति पूर्वक आप इसको अभ्यास के रूप में लीजिए, जागृति पूर्वक करने के अभ्यास के रूप में लीजिए. As soon as you wake up, just spend 5 minutes reflecting on the advantages that you have. तो जैसे ही आप आँख खोलते हैं, जागते हैं, तो 5 मिनट आप बिताइए और उन अच्छी चीजों के बारे में सोचिए जो आपको मिली हुई है. 10 minutes if you want, half an hour if you want. yeah? अगर आप चाहे तो 10 मिनट कीजिए, अगर चाहे तो आप आधा घंटा भी सोचिए. So reflect very deeply on how good your situation is. और बहुत गहराई से, गंभीरता से सोचिए कि आपकी परिस्थिति कितनी अच्छी है. And I guarantee that will affect your whole day. और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि वो आपके पूरे दिन को प्रभावित And करेगा. of course you're thinking, well, I've got these advantages, now I must use them. और फिर आप ऐसा सोचेंगे कि अब क्योंकि ये सारे लाभ मेरे पास मौजूद है, मुझे मिले हैं, मैं उसका इस्तेमाल करूँगा. Use them or lose them. या तो आप उनका उपयोग कर लीजिए या उन्हें गंवा दीजिए. Doesn't work in Hindi. Works. Okay. So yes, use those advantages to the full. तो पूरा इनका फायदा लीजिए, पूरा फायदा लीजिए. Thank you.